Good evening, all the participants. We are just going live in a minute. We are allowing all the participants to come in. Har Har Mahadev. Life lessons from Ma Shiva. As we all know, Lord Shiva is the reigning deity among the Holy Trinity of Brahma, Vishnu, and Mahesh. He is known to us by many names. He is the Aghori, the Bholenath, the Maheshwar, the Nilkant, the Mahadev, and many more. He is the ultimate creator and destroyer. Multifaceted Lord Shiva is the giver of wisdom. If there is one God who can offer you lessons in the art of living, it has to be the popular Hindu deity, Lord Shiva. Popularly known as the Lord of Mercy and Compassion, he can defeat the evil, he can destroy the ignorance, as well as he can grant us the wisdom. Let me take this opportunity in introducing you all a gentleman named Rishi Nanda, who is the speaker for the day, who has successfully migrated out of his corporate life, and he is now a spiritualist in a different way. He is more of a spiritualist in the sense that he gives talk, valuable lessons which can be learned out of Hinduism. As I described him, he's a spiritualator, facilitator, he's a mythologist, he's also tarot card reader, and a spiritual speaker for various corporate and non-corporate entities. His mythological knowledge and practical life experience makes him connect and understands various personalities and train in a simple yet powerful manner that has a long-lasting effect on an individual or the team of individuals. He has delivered till now more than 500 sessions across 50 cities in India and more than 20,000 participants across 25 industry for more than 100 organizations have benefited out of it. He is also a certified Daniel Carnegie certified trainer on management. He's a management graduate from International Management Institute and has also done his master's in commerce. In addition, he also holds diploma in commerce and human resource management, advertising, and public relationship. He is also co-author of the best-selling book, Break Your Leadership Chakravyuh. With that, I welcome Mr. Rishi Nanda for today's talk. Rishi, it has been a privilege to host you, and also it was very sweet on your part to accept our invitation at such a short notice, and more importantly, talking on a subject which I and you know is not that it was prepared from earlier or you have given a talk somewhere, but our audience are very, what to say, lucky enough that they are hearing it for the first time. Rishi, all yours. Now I leave up to you. Thank you, sir. Thank you, sir. First, sir, thank you so much for the opportunity. And आपने जैसे rightly बोला कि ये एकदम impromptu हुआ था. एक तो मुझे आपका नाम बड़ा अच्छा लगता है, व्यास साहब. तो वेद व्यास की वजह से तो हमें इतने books, इतनी ज्ञान मिली है. तो जब when we connected, and he said that श्रावण का महीना है, so let's do a talk on Lord Shiva, and I felt that blessed, that he thought that I'll be good enough, to connect with you all. So let me just start the session, and let me just set the context over here. So what do we do? As sir said that my name is Rishi Nanda, and I was into corporate. I quit my job, 3-4 years of internal struggle to identify what I wanted to do. Then got attracted to Bhagavad Gita CD, heard that CD for a year, and 2011 is when I quit my job. 11, 12, 14 is when I got attracted to the CD. 15 is when I got up with the thought to get into reading epics, ancient Indian history, or Puranas, or Indian mythology, whatever you call it. And by 2015 I could figure out that yes, I want to get into trainings. I want to speak to people, share whatever my understanding is, whatever my learning is about the books of India.
And then last 6 years, God has been kind, God has been grace, there's a lot of love we have received from a lot of people across India to take sessions on these subjects. So coming back, what do we do? So there are two ways of looking at this. I always start my sessions stating, starting with a disclaimer that we are not promoting any religion thought process, religion belief. It is just for understanding, explanation purpose. You believe Lord Shiva exists, you're right. In case you don't believe in Lord Shiva, that is also right. Whatever you believe is right. Okay, I believe Lord Shiva exists. I believe he's the God, And in case you believe he's not, I'm sure we both can coexist. But there are learnings, there are beautiful learnings, there are wonderful learnings that we have, and we're going to focus on the learning aspect of it. So because learning is very important, rather than getting into what do you call heated argument which leads nowhere. So we'll focus on the learning aspect of it. एंड एक मुझे एक क्वेश्चन हमेशा आता था कि हम कोई बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए हमको? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, संतोषी, इतने सारे भगवान देवी देवता है, इनके बारे क्यों पढ़ना चाहिए हमें? हमारे एपिक्स क्यों पढ़ने चाहिए? हमारे बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए? सो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर, बिफोर वी गो हेड, लेट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. अब इसमें होता क्या है कि चार प्रकार के लोग होते हैं. एक होते हैं हु आर educated, one who's educated on paper but they are not intelligent. Second, someone is intelligent but they are not wise. They don't know, how to implement the learning. They'll just do what has been told to them. Okay. So the difference between an intelligent and a wise in a very simple manner is, हमको एजुकेशन मिल गई है, क्या करना है, क्या है, सब हमको पता चल गया है. इंटेलिजेंट मैन विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट. So from theoretical, we move on to the implementation part of it. From the implementation part of it, we move towards wisdom. That is because of our experience that we have. Then we become wise, and then we come to know when to keep quiet, when to speak. So we understand how to handle ourselves much better. From wisdom, we move on to enlightenment, जहाँ पे our consciousness increases a lot. Okay, we are in control of our vices, we're in control of our thoughts, we're in control of our actions. Now from education to enlightenment, ये जो चार प्रकार के लोग होते हैं, ये सब हमारी किताबों में है. तो अगर हम अपनी नॉलेज जो है, जो हमें मिलती है बुक से, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम गलतियां कम करेंगे लाइफ में, हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किताबों में लिखा मिलता है, तो वो कारण है हमारे एपिक्स और पुराण पढ़ने का. अगर हम पढ़ेंगे, हम दूसरों की गलतियों से ही सीख लेंगे, तो हमारी गलतियां कम होगी. एंड probably my journey from an educated person to an enlightened human being will be faster. So these are the certain points I've thought that I'll add before we start the session. Now and thank you so many people who have joined us on Zoom, and for the people who are watching us on various social media platform. So let's just one second. Okay, so as you can see the screen, today what we're going to present is on Lord Shiva. Now before we start, I would like to humbly say that I'm a learner as good as you, or you might be a better learner than me. But what I do is share whatever my thoughts are, whatever I've understood, whatever I've learned, either by reading books or by interacting with people. अब हो सकता है कि आपके कोई क्वेश्चंस होए जो मुझे नहीं पता होए, तो आई फोल्ड माय हैंड, से कि सर मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट लाइक टू ब्लफ. ओके, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कोई भी एक स्टोरी बना के आपको बता दूं, देखो ऐसा है, बिकॉज आई बिलीव देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर अवेयर ऑफ, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो हो सकता है आपके कोई प्रश्न आएंगे जो मुझे नहीं पता होंगे, तो आई वुड सीक फॉरगिवनेस फॉर दैट, बट आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, because that is what I believe leads us to also learn and move ahead in life. शिव पुराण में ना एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, वन ऑफ माय फेवरेट लाइन. For every incident, for everything that takes place, there are three truths that exist. For every incident, there are three truths: your truth, my truth, and the real truth. And no one speaks the real truth. Everyone speaks the truth that they believe is the truth. What I'm going to present today is my version of truth. I'm sure you'll also have your version of truth. And no one over here is a possibility that we are speaking the real truth, because neither were you there, neither I was there. But we believe in this truth and we speak over here. I'm ready to learn from your version of truth as well. Just hear me out completely, and I hope there's something that we can take away. That I hope there's something that we can implement from this talk.
Correct. So on this note, we'll take it right from here. Okay. In case there's any question, you can please put it in the chat box, and you can ask me anytime, whatever you want to ask, and I'll be more than happy to take that question. Okay. Now, as sir said that, त्रिमूर्ति है, ब्रह्म विष्णु महेश. अब हम सीधा भगवान शिव के बारे बात कर सकते हैं, बट लेट्स फोकस ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओम. ओके. अब ओम जो ऐसा शब्द है, जब हम कहते हैं हमें पीस मिलता है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, कंटेंट मिलता है, कामनेस आती है. बट ये जो ओम है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, शब्द है. अगर आप देखेंगे, ओम जो है वो 3 सिलेबल्स का है, अ ओ म. ओके. अ ओ म. अगर आप अ कहेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे ना, अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी कोशिश करके देखिए, अगर आप अ कहेंगे तो आपके स्टमक पे ना, ओके, वहां पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो वो आवाज वहां से आती है, अ. करेक्ट. आप ओ कहेंगे, ओ, तो वो जो आपके बॉडी, जो लंग्स, जो हार्ट है ना, यहाँ पे आपको फील होएगा, ओ. और जब आप म कहेंगे, म, तो आपके माइंड में वाइब्रेशंस होती है, आपकी ब्रेन में यहाँ पे वाइब्रेशंस होती है. करेक्ट. यस और नो. अगर आप चैट बॉक्स में मुझे अपडेट कर सकते हैं, कैन यू फील इट, अ ओ म. करेक्ट. अ ओ म. करेक्ट. अब इनको हम लिंक करके देखते हैं, इसका मतलब क्या. जब हम अ करते हैं, ओके, हमारे स्टमक में आवाज आती है. दैट इज वेयर द जनरेशन ऑफ लाइफ टेक्स प्लेस. एक बच्चे का जन्म यहाँ से होता है. करेक्ट. सेकेंड होता है ओ. जब हम ओ करते हैं, तो हमारी लाइफ का जहाँ पे ऑपरेशन पार्ट्स है, हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, सब वहां से आता है. Correct. The entire nerves of our body passes from here. Correct. When we say mo, it starts to destroy, vibrate. It starts to destroy the negativity in our mind. So it's basically generation of life, operation of life, and destruction of vices. That is basically God. That is God. Okay. अगर आप जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन को देखेंगे, दैट इज नथिंग बट लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड महेश. अब ये जो ओम है, ये इतना पावरफुल, मुझे इसके लिए भी लगता है कि इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द त्रिमूर्ति. सो ओम नमः शिवाय. करेक्ट. सो ऑन दिस नोट वी मूव अहेड, बिकॉज ये तीनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट है, उतने ही सिग्निफिकेंट है. हर एक की अपनी एक इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस अलग एस्पेक्ट में भी होगी. बट लॉट ऑफ टाइम पीपल से, जब हम सेशंस लेते हैं ना, कि लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड महेश में कौन बेटर है, मतलब इट्स लाइक, आई से मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है. It's like you're telling me to select between my son and my daughter, or my mother and my father. How can I do that? Everyone is good in their own way, and we are just going to focus today on Lord Shiva. Correct. Thank you, Natarajan, sir, for the response. Now, next देखते हैं. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है. एंड जस्ट टू शेयर, आई एम अ स्टोरी टेलर. ऑब्वियसली भी हम लॉर्ड शिवा जी, लॉर्ड शिवा के बारे में बात करने वाले, तो हम स्टोरीज के थ्रू ही हम बात करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहाँ पे एक यज्ञ हो रहा होता है. शिव जी बैठे होते हैं. पंडित जी उनको पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके पिताजी का नाम क्या है. तो लॉर्ड शिवा उनको देखते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा ने सब कुछ क्रिएट किया, तो ब्रह्मा मेरे पिता. पंडित जी कहते हैं ठीक है, आपके दादाजी का नाम क्या है. तो शिव जी देखते हैं पंडित जी को और कहते हैं, ब्रह्मा जी निकले नाभि में से विष्णु के, तो विष्णु मेरे ग्रैंडफादर. फिर वो पूछते हैं, वेरी गुड, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है. तो लॉर्ड शिवा मुस्कुरा के कहते हैं, मैं खुद. एंड दैट पंडित जी वो क्या कह दिया इन्होंने, कि पिता ब्रह्मा जी, और बाद में पिता ब्रह्मा जी, ग्रैंडफादर हो गए विष्णु जी, और ग्रेट ग्रैंडफादर खुद को कह दिया. तो तब उन्होंने बताया कि हम तीन हैं, वो एक सर्कुलर मैनर में है, और सब कुछ हमसे ही शुरू होता है. यहाँ पे ना मैं आपसे एक लाइन शेयर करना चाहूंगा, विच वॉज रिटन बाय श्री आदित्य शंकराचार्य जी, वेरी सेड, आई हैव नो फियर ऑफ डेथ, नो कास्ट और क्रीड. I have no father, no mother, for I was never born. I am not a relative, nor a friend, nor a teacher, nor a student. I am the form of consciousness and bliss. I am the eternal Shiva. शिव जी, और अगर आप देखेंगे वो अजन्य है, उनका जन्म ही नहीं हुआ है.
ओके, तो उनको अजन्य इसके लिए कहा जाता है कि वो बिकॉज ऑफ देयर इज नो वर्स दैट हैव कम अक्रॉस जो कहते हैं कि वो उनका बर्थ क्या है। तो शिव जी और विष्णु को अजन्य कहा जाता है, दे इटर्नल। एंड दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट आई केम अक्रॉस, एंड आई थिंक दिस डिस्क्राइब्स लॉर्ड शिवा परफेक्टली ओवर हियर, दैट आई एम द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, आई एम द इटर्नल शिवा। ओके, नाउ अब आगे चलते, चलिए अब एक इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या कोई बता सकता है कि हम महाशिवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आई होप आई एम क्लियर नाउ, पद्मा मैम। ओके, कैन एनीवन प्लीज टेल मी हम महाशिवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बहुत बड़ा फेस्टिवल है इंडिया में, हम बहुत बड़े चाव से मनाते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, लॉर्ड शिवा को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा करते हैं, रात भर उनके भजन गाते हैं, बट सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? चलिए इसकी कहानी अब हम, ओके फेयर इनफ, शिव शक्ति का मिलन। मैं आपको भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, इसका वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। अब होता क्या है, एक दिन लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं लॉर्ड विष्णु को, जब पूरा संसार बना दिया ब्रह्मा जी ने, पूरी प्रकृति बना दी, दुनिया बना दी, कॉस्मोस बना दिया, सब कुछ बना दिया, तो ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान को कि मुझे लगता है कि मैं आपसे बड़ा, मतलब आपसे बड़ा भगवान हूं, कि मैं आपसे मैंने आपसे बड़ा कार्य किया। नाउ ओवर हियर लॉर्ड विष्णु इज लाइक, ये कैसा डिस्कशन है कि आपने मुझसे बड़ा कार्य किया है, आप प्रथम भगवान हो, ये कैसी टाइप की डिस्कशन हो रही है हम दोनों के बीच में। अब वहां पे ब्रह्मा जी कहते कि देखो, मैंने प्रकृति बनाई, मैंने दुनिया बनाई, मैंने इंसान बनाया, देवी, ये सब कुछ मैंने बनाया, तो मैं बड़ा हुआ। अब वो छोटा सा डिस्कशन हो रहा होता है, अब वहां पे विष्णु भगवान कहते हैं कि चलो भाई आपने सब बना लिया, कोई बात नहीं, बट इसको चला तो मैं रहा हूं, तो जो चलाएगा वो बड़ा। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं, अगर मैं बनाऊंगा नहीं तो तुम क्या चलाओगे, तो मैं बड़ा। अब ये छोटी सी एक जो उनके बीच पे बात चलती है, अब ये छोटी सी जो बात है, अब वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। अब ये छोटी सी जो आर्ग्यूमेंट है, बहस में, उसके बाद में झगड़े में डेवलप हो जाती है। अब झगड़ा चालू हो जाता है इनके बीच में। अब झगड़े में इन लोग शस्त्र अस्त्र सब निकालते हैं, विष्णु देवता और ब्रह्मा जी, और एक दूसरे के ऊपर अब ये लोग वो शस्त्रों का इस्तेमाल करना चालू करते हैं। अब वो युद्ध इतना भयंकर हो जाता है कि ऐसे लगता है कि पूरी प्रकृति का अब नाश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। उस वक्त उन दोनों के बीच में से एक लाइट निकलती है, और उस लाइट में से शिव निकलते हैं, और शिव के सुनते हैं उनके आर्ग्यूमेंट की क्या हो रहा है, वो समझते हैं पूरी सिचुएशन को, और कहते हैं कि ठीक है चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कंपटीशन है, जो ये कंपटीशन जीतेगा वो प्रथम, वो बड़ा भगवान। दोनों एग्री करते हैं, बोलते हैं कि इस लाइट का जिसको अंत मिलेगा, इस लाइट का जिसको अंत मिलेगा वो बड़ा भगवान। अब लॉर्ड ब्रह्मा एक तरफ निकलते हैं, लॉर्ड विष्णु एक तरफ निकलते हैं, और दोनों उस लाइट का अंत को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग सदियों तक, सालों तक ढूंढ रहे, किसी को भी वो अंत मिलता ही नहीं है, किसी को भी वो अंत मिलता ही नहीं है। बट लॉर्ड विष्णु कहते कि मुझको तो नहीं मिल रहा है, तो फिर वो वापस आ जाते हैं शिव जी के पास, हाथ जोड़ के कहते कि प्रभु मुझे इस लाइट का अंत नहीं मिला, अगर ब्रह्मा जी को मिल जाएगा इस रोशनी का अंत, तो मैं उन्हें प्रथम भगवान मान लूंगा, मैं उन्हें अपने से बड़ा भगवान मान लूंगा, मैं हार स्वीकार करता हूं, मुझे नहीं लगता है कि इस रोशनी का अंत है। अब विष्णु भगवान शिव जी के साथ बैठते हैं। अब वहां पे ब्रह्मदेव को भी नहीं मिली अंत, तो ब्रह्म देवता को भी नहीं मिल रहा है, बट ब्रह्म देवता बोल रहे कि अब ये कैसे हो गया, कि अब इस तो अंत मिल ही नहीं रहा है, और मैंने तो फिर विष्णु देवता को ये भी कह दिया कि तुमसे बड़ा मैं प्रथम, मुझे सब ज्ञान है, सब कुछ मैंने बनाया। अब वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। वहां पे उनको एक फ्लावर मिलता है, ओके, और उसको, लक्ष्मण सर, इज इट नॉट ऑडिबल? 1 सेकेंड। ओके, नाउ इज इट बेटर सर? लक्ष्मण सर, नाउ इज इट बेटर? ओके, अब वहां पे उनको रास्ते में बीच में वहां पे उनको मिलती है केतकी फ्लावर्स, और वो केतकी फ्लावर्स को बोलते हैं ब्रह्म देवता कि देखो वहां पे ना एक कंपटीशन चल रहा है, लॉर्ड शिवा ने कहा है कि जिसको इसका अंत मिल जाएगा उसे वो प्रथम भगवान घोषित करेंगे।
मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो, मैं कहूंगा कि तुम मुझे अंत में मिली थी और वहां पे तुम हाँ में हाँ कह देना और मुझे लॉर्ड शिवा प्रथम भगवान घोषित कर देंगे। वो कहती ठीक है चलो। अब केतकी को फ्लावर्स को लेके जाते हैं शिव जी ब्रह्मा जी के पास, सॉरी ब्रह्मा जी लेके जाते हैं शिव जी के पास। अब वहां पे शिव जी के उधर होते हैं और वो कहते हैं कि देखो मुझे तो अंत मिल गया और अंत में मुझे मिली थी केतकी फ्लावर्स ऑल्सो, आप उनको भी पूछ सकते हैं। तो केतकी भी कहती है हाँ मैं अंत में मिली। अब वहां पे विष्णु भगवान खड़े होते हैं, वो देखिए ब्रह्मा जी को अंत मिल गया। ब्रह्मा जी फुल प्राइड में खड़े होते हैं कि देखो मुझे तो अंत मिल गया। विष्णु देवता हाथ जोड़ के कहते हैं कि ठीक है आप मुझसे बड़े भगवान, मुझे तो अंत नहीं मिला, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। ब्रह्मा जी बड़े खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं कि देखो मैंने विष्णु जी को प्रूव कर दिया कि मैं उनसे बड़ा। अब यहाँ पे होता क्या है, उस वक्त भगवान शिव को आता है गुस्सा और वो कहते हैं कि कैसा भगवान है तू, कैसा भगवान है तू कि तू झूठ भी कहता है, कपट भी कर रहा है, दूसरों से झूठ भी बुलाता है, सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए कि तू सबसे महान है। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा। तुम्हारा जो अहंकार है वो तुम्हें यहाँ पे तुम्हें गलत काम कराने पे मजबूर कर रहा है। और ब्रह्मा जी को एक्चुअली जो 4 फेसेस हमको दिखते हैं, उनको एक और सर था जो उनके ऊपर से था। उस वक्त भगवान शिव उस सर को निकाल देते हैं और उसके बाद वो केतकी को कहते हैं कि केतकी तुमने भी ब्रह्मा की हाँ में हाँ मिला दिया, अब मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि मेरी जब भी पूजा होगी तो केतकी फ्लावर्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। और ब्रह्म देवता कि तुम याद रखना कि तुम अगर कपट करोगे, छल करोगे, अहंकार में रहोगे तो कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मेरा श्राप है तुम्हें। उसके बाद ब्रह्म देवता घबरा जाते हैं, केतकी भी घबरा जाती है और लॉर्ड शिवा उस वक्त विष्णु भगवान को कहते हैं कि आज से तुम्हारी मान्यता होगी, तुम्हारी पूजा होगी, जग में तुम्हारा नाम होगा, ब्रह्म का नहीं होगा। ब्रह्मा हमारे पिता है, हमारे फादर है, हमारे क्रिएटर है, बट आई एम श्योर आपने नोट किया होगा उनके मंदिर नहीं है ज्यादा। सिर्फ राजस्थान में पुष्कर जगह में एक उनका मंदिर, मैं साउथ में गया था, वहां पे भी मुझे एक मंदिर में उनका आइडल दिखा था, बट उनके ज्यादा मंदिर नहीं है। बट अगर आप विष्णु देवता के देखेंगे, उनके अलग अलग अवतार के देखेंगे, कई मंदिर है पूरी दुनिया में। ये हुआ क्योंकि उनको जो श्राप मिलता है शिवा से। अब उस वक्त जब शिव जी भोलेनाथ ब्रह्मा जी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया, मुझसे गलती हो, हमें क्षमा करना। उसके बाद ब्रह्म देवता और विष्णु भगवान उनके गुण गाने चालू करते हैं, कीर्तन गाने चालू करते हैं, भजन गाने चालू करते हैं, शिवा की तारीफ करना चालू करते हैं। वो जो रात थी, वो रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसके कई अलग अलग महाशिवरात्रि कहते हैं। एक होता है कि माँ पार्वती और शिव जी की शादी हुई, उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। एक स्टोरी ये आती है क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पूरी रात उनके गुण गाए, भजन गाए, शिव जी प्रसन्न हुए, तो उस रात को भी महाशिवरात्रि कहा जाता है। बट इसमें अगर आप एक चीज नोट करेंगे, अगर आपने एक चीज नोट की होगी पूरे स्टोरी में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, कि अगर आप कोई चीज क्रिएट करते हैं, अगर आप कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी इज अ क्रिएटर, उन्होंने कोई चीज क्रिएट की है, बट उनको उनका अहंकार आ गया, वो अपना हक जताने लग गए कि ये मेरी चीज है। अगर हम कभी भी कोई ऐसा कार्य करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है हमारा अहंकार मिटाने के लिए, और वो शिव होते हैं। हमारा अहंकार, हम कितना भी अच्छा कार्य करें बट हमें जमीन पे ले आता है। सब कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया बट फिर भी कोई उनकी पूजा नहीं करता है। दिस हैज बीन वन ऑफ माय बिगेस्ट, कि व्हेन यू क्रिएट समथिंग, व्हेन यू क्रिएट, डू नॉट ट्राई टू पोजेस इट। आप उसे हक से नहीं अपने पास रख सकते हो, आपको चीज की क्या कहते हैं उसको चलाना भी है, इसके लिए विष्णु देवता भी है। अगर उसमें कुछ गलत होता है तो शिवा भी आते हैं, डिस्ट्रक्टर भी आते हैं। अगर अब हम इन तीनों को देखते हैं इसके अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 भगवान, ये 3 फेजेस ऑफ आवर लाइफ भी है, ये तीनों हमारे फेज ऑफ लाइफ भी है। ब्रह्मा जी, अगर हम जब भी कोई कार्य चालू करते हैं, कोई काम चालू करते हैं, कोई बिजनेस चालू करते हैं, कोई नई नौकरी हम ज्वाइन करते हैं, कोई भी काम हम जब फर्स्ट टाइम करने की कोशिश करते हैं, हमारे में इनसिक्योरिटी होती है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसा होगा, कस्टमर को मेरा चीज अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैंने क्रिएट किया, यू आर पॉजिटिव अबाउट इट, दैट इज अ ब्रह्मा फेस। बट इफ यू आर पॉजिटिव, if you're too much into yourself, if you're trying to belittle the other person,
डिमीन द अदर पर्सन, लुक डाउन टू द अदर पर्सन्स कंट्रीब्यूशन, तो आपको आज नहीं तो कल किधर ना किधर आपका डाउनफॉल पक्का होएगा. दैट इज द ब्रह्मा फेज आउट ऑफ इनसिक्योरिटी. सेकेंड कम्स द विष्णु फेज, वेयर इफ यू लुक एट लॉर्ड विष्णु, वो जब भी अपने अवतार में आए, कभी राम जी बन के आए, कभी परशुराम जी बन के आए, कभी बलराम जी बन के आए, कभी कृष्ण जी बन के आए, जब भी वो अपने कोई भी अवतार में आते हैं, वो हमेशा ज्ञान बांटते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, वो चुपचाप अपना काम करते हैं. और उनका एक वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग दैट ये शेयर विद एवरीवन इज कर्म कर फल की चिंता मत कर. वो चुपचाप अपने काम पे ध्यान देते हैं. द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग towards your work, focus on your work, focus on your input rather than focusing on your output, start sharing your knowledge with people, without getting insecure. That is a Vishnu phase, जो eventually हमारी लाइफ में वो फेज आता है जब हमारा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, कस्टमर्स थोड़े आने चालू होते हैं रेगुलरली, लाइफ पे थोड़ा सेटलमेंट होता है, सब सेट होता है, तब हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, हम सिक्योर पोजीशन में आते हैं, तब आता है हमारा विष्णु का फेज. अब the most interesting phase is the transition that takes place from Lord Vishnu to Lord Shiva. From a secure place to a content. Content है Lord Shiva. ये जो हम बात करने वाले हैं, ये एस्पेक्ट के बारे में बात होगी कि कंटेंट है लॉर्ड शिवा, और वो कैसे कैसे अलग अलग तरीके में हमको बताते हैं कि वो कंटेंट कैसे है, हम उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं, knowingly unknowingly, how he has given us so much of knowledge and so much of willpower and so much of guidance by walking the talk and telling us what to do and how to do. Fair enough? Good till here? Okay. तो अभी तक ओम के बाद 3 फेजेस आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. Insecurity to security phase, security to content phase. What we are going to focus is how do we move from a secure space to a content phase. Now, I'm sure आपने एक चीज नोट की होगी कि जब आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पे एक शिवलिंग होता है. करेक्ट? आई एम श्योर आपने नोट किया होगा. कई सारे मंदिरों में तो इनफैक्ट शिव जी की मूर्ति नहीं होती, शिवलिंग होता है. मुझे ना बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से कि शिव जी का शिवलिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. और फिर मैंने ये भी नोट किया कि हम कभी भी कोई भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम उनकी पूरी परिक्रमा करते हैं, 360 डिग्री हम वहाँ पे सर्कल में चलते हैं. बट शिवलिंग का कभी भी 360 डिग्री परिक्रमा नहीं होती. आप एक पॉइंट से चालू होते हो, आप पूरा चल के जाते हो दूसरे पॉइंट पे और वापस आप आओगे, बट आप उसको हॉप ओवर करके नहीं जाते हो, आप उनके पीछे से नहीं जा सकते हो, आप लूप क्लोज नहीं कर सकते हो. करेक्ट? यस और नो? आपने नोट किया होगा ऐसे शिवलिंग में होता है. अब मुझे एक और चीज आई कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में अगर आप देखेंगे इतने देवी देवता हैं, बट जैसे अभी मैं आपको नाम लूंगा, जैसे मैं आपसे अभी आपको नाम लूंगा ना, आप विजुअलाइज करना चालू कीजिए. और ये चैट बॉक्स में आप प्लीज वी कैन कम्युनिकेट 2 वेज, वरना ये ऐसे नहीं लगे कि मोनोलॉग है या ये पॉडकास्ट है. यू कैन प्लीज यूज इट इन द चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन, व्हाटएवर. तो अभी अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको कोई नाम कहता हूं, कैन यू विजुअलाइज दैट पर्सन, कैन यू विजुअलाइज दैट गॉड, कैन यू विजुअलाइज दैट डीटी. करेक्ट? आपको कोई इमेज ध्यान में आती है? लक्ष्मी माता, यस और नो? चैट बॉक्स में वेरी क्विकली, लेट्स मेक इट वेरी इंटरेक्टिव. करेक्ट? सरस्वती माता, प्रभु राम, भगवान कृष्ण, परशुराम, हनुमान जी, बुद्धा, महावीर भगवान. कोई ना कोई आपको फॉर्म उनका ध्यान में आ रहा है. करेक्ट? अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, जब आप शिव जी के बारे में सोचते हो, ओके, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में आती है? जब आप शिव जी की आंखें बंद करते हो, प्रभु शिव के बारे में सोचते हो, मल्टीपल थिंग्स. करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट संग्राम सर. करेक्ट? अभी देखिए आपको मेडिटेशन पोज भी आ रहा है, काम कंपोज भी आ रहा है, शिवलिंग भी आ रहा है. अभी ब्यूटी ऑफ लॉर्ड शिवा देखिए, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट फॉर मी ऑफ लॉर्ड शिवा. करेक्ट?
जितने भी अभी मैंने देवी देवताओं के नाम लिए ना, आपको एक फेस ध्यान में आएगा, आपको एक फॉर्म ध्यान में आ रहा है। शिव जी एक ही ऐसे हमारे भगवान हैं जिनका यस एक फेस हमको ध्यान में आता है, एक उनका पोस्चर ध्यान में आता है, बट हमको एक शिवलिंग भी ध्यान में आता है जो जिसका कोई फेस नहीं है। शिवलिंग का फेस नहीं है, करेक्ट। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकती है कि ऐसे ही किसी का मन किया। आपको और कोई देवी देवता ध्यान में आ रहे हैं, आपको और कोई भगवान ध्यान में आ रहे हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्म, बाय अ सिंबल लाइक शिवलिंग? आपको और कोई देवी देवता ध्यान में आ रहे हैं? जैसे शिवलिंग रिप्रेजेंट्स लॉर्ड शिवा, is there any other symbol which represents any other particular deity, god, goddess? Correct, okay. And others? Okay. So let's say for example lotus for Lakshmi Mata, but do we have a temple where only lotus is there? लक्ष्मी माता भी होगी ना उसमें, correct? So yes, Lord Murugan is there, Karthik is there, but if you look at it, Lord Shiva, okay, is more popular with a symbol that is a शिवलिंग. अब इनका पर्पस क्या है? अगर हम उसे एक मेटाफर टर्म में देखते हैं, एक एक it's a relationship between a devotee and his God, his Almighty, his Creator. I can imagine when I close my eyes, I'm in a temple, मैं ध्यान लगा के बैठा हूँ, मेरे सामने शिवलिंग है, मैं ध्यान आके क्लोज करता हूँ और भगवान शिव के बारे में सोचता हूँ, तो मैं भगवान शिव को मैं कैसे भी विजुअलाइज कर सकता हूँ. In any form that I want, I can visualize Lord Shiva. There is no fixed form of Lord Shiva. Okay, so over here, if you see, Lord Shiva का जो है, एक है कि वो अपने डिवोटी से कनेक्ट होना चाहते हैं the way the devotee wants. कहा जाता है कि एक बार किसी को पूछा गया था कि तुम्हें अगर लॉर्ड शिवा को डिस्क्राइब करना है या तुम्हें अपने गॉड से कनेक्ट करना है तो तुम क्या कहोगे? तो स्कल्पचर ने शिवलिंग बनाई थी और बोला कि ये भगवान है मेरे लिए. ओके, और उसके बाद फिर सब लोग ने बोला कि करेक्ट, ये भगवान है, ये मैं इनसे कनेक्ट कर सकता हूं. नाउ यू लुक एट इट, सच अ ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट विद द डिवोटी. अगर मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे अगर मेरी माँ दिखती है शिवलिंग के बदले, तो मेरी माँ मेरी भगवान है, मेरे पिताजी मेरे भगवान है, मुझे जो उसमें दिखता है वो मेरे लिए भगवान, वो रूप में भगवान है. सेकेंड, कमिंग टू द परिक्रमा, कि आप कभी भी देखिए, आप अभी आप आई एम श्योर आपको तो ऑब्वियसली ध्यान में होगा ही, बट अगर नहीं होगा तो अभी आपको रियलाइज होगा मेरे कहने का कि आप 360 डिग्री परिक्रमा नहीं लेते शिवलिंग की. तो ये ना मुझे ऑनेस्टली कभी समझ में नहीं आया था. मैं गलत नहीं कहूंगा, तो मैंने फिर एक पंडित जी को पूछा था कि पंडित जी, मुझे एक बात पूछनी थी. अब मैं सीखने के हिसाब से आपको पूछ रहा हूँ, ना कि चैलेंज करने के हिसाब से, ना कोई कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम लोग 360 डिग्री क्यों नहीं चलते शिवलिंग के? मतलब मैं हॉप करके क्यों नहीं जा सकता हूँ, या मैं उनके बाजू में वो जब भी जो उनका शिवलिंग का जो एग्जिट होता है वो एक वॉल से क्यों कनेक्टेड होता है, वो सेंटर में क्यों नहीं है? तब मुझे पंडित जी ने कहा कि शिव को कोई नहीं समझ सकता है. शिव जी का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो कोई भी नहीं समझ सकता है. तो इसके लिए आप परिक्रमा नहीं ले सकते उनकी, क्योंकि आप कितना भी उनको समझने की कोशिश करो, आप नहीं समझोगे. ओके, वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे अंत होता है, ये सिर्फ शिव ही जानते हैं, वो कोई नहीं जानता है. जब आप परिक्रमा लेते हो तो मतलब देयर इज समथिंग दैट यू आर गोइंग इन सर्कल, तो आपके बीच में है, बट शिव का ना स्टार्ट है ना अंत है. इसके लिए आप उसकी परिक्रमा नहीं ले सकते हो. He is mysterious. Well, yes, temple is. I'm specifically speaking about Akshay sir, about the शिवलिंग. I'm specifically speaking about the शिवलिंग. कि अगर आप टेम्पल के अंदर जाएंगे जहाँ पे शिवलिंग होगा, वो हमेशा एक वॉल से अटैच्ड होता है. वो कभी भी अगर आप देखेंगे, अगर वो शिवलिंग छोटा सा होगा तो नीचे भी जो मार्बल का या कोई होएगा जिसका आउटलेट होता है, वो हमेशा एक वॉल से अटैच्ड होता है. और आप वो शिवलिंग के उधर कभी आप हॉप करके नहीं जा सकते हो. टेम्पल तो ऑब्वियसली सर, वो तो भी आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, बट दैट इज व्हाट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट. सेकंड, शिवलिंग अगर आप देखेंगे या अभी आप लॉर्ड शिवा के बारे में देखेंगे,
तो उनके हमेशा जो होते हैं 3 ऐसे लाइंस होते हैं हॉरिजॉन्टल, जो एक तिलक होते हैं। ओके, विष्णु के जो फॉलोअर्स होते हैं उनका यू शेप में होता है, शिव जी के जो फॉलोअर्स होता है उनका 3 लाइंस में होता है, और एक सेंटर में एक डॉट होता है। तो ये आई एम श्योर बहुत लोगों को पता भी होगा, बट जस्ट सो दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, ये इनका इंटरप्रिटेशन मुझे काफी अच्छा लगा था। और ऑनेस्टली सर, मैं आपसे मैडम, जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये कई किताबों से हो गया या कोई पंडितों ने या गुरुओं ने मुझे बताया है कि इनका मतलब क्या है, इनके पीछे का। अब कहा कि ये जो 3 लाइंस होती है, ये शिव जी की हॉरिजॉन्टल लाइंस है, बिकॉज देयर इज नो एंड टू लॉर्ड शिवा, देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, देयर इज नो एंड पॉइंट। Second, these 3 lines also represent tamas, rajas, and sattva gunu. These 3 lines also represent past, present, and future. And the dot in between is the consciousness. Okay? So इसके लिए इनकी जो लाइंस होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जाती है कि ये सब जगह स्प्रेड है, ओमनी प्रेजेंट है। देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो टाइम वेयर लॉर्ड शिवा डिड नॉट एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट और विल नॉट एग्जिस्ट, एंड ही इज ओमनी प्रेजेंट, हिज कॉन्शियसनेस इज हाई। So that is little bit on shivling. Okay, chaliye. So all good till here? Can you let me know in the chat box? So all good till here? Can we have some reactions? That's nice. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you, sir. Thank you so much for the feedback. Come. चलिए, अब ये कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। नाग पंचमी थी कल, करेक्ट? तो आई एम श्योर हम सब लोगों ने देवताओं सॉरी नाग को जाके दूध पिला होगा। अभी तो लॉकडाउन है, वरना ये तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। बट नाग पंचमी की कहानी क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मुझे बहुत फैसिनेट करता था बचपन में कि हम नाग को दूध पिला रहे हैं, मतलब कितना अमेजिंग है। आप सोचिए, व्हेन यू गो टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू से दैट वी आर फीडिंग मिल्क टू द स्नेक एंड दे आर लुकिंग एट अस, व्हाट आर यू टॉकिंग, वॉलंटरी? यस, वॉलंटरी। यू वॉक अप टू द स्नेक, यस वी वॉक अप टू द स्नेक, बट व्हाई वुड यू डू दैट? व्हाई वुड यू गिव मिल्क टू द स्नेक? इट्स लाइक, ये हो क्या रहा है? अब इसकी कुछ ना एक छोटी छोटी बातें समझ के चलते नाग पंचमी की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वी लुक एट द सिग्निफिकेंस ऑफ इट एंड देन ऑब्वियसली वी लुक एट द स्टोरी दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। नाग पंचमी, ओके, चलो इसके पहले मैं आपको ना एक रियल एक स्टोरी बताता हूँ, इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं एक बार एक सेशन के लिए गया था, कारवा करके एक जगह विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। तो वहाँ पे एक मेरे क्लाइंट है जिनका वहाँ पे ना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है विच वाज इन मिडिल ऑफ यू कैन से अ फॉरेस्ट, नॉट टेक्निकली बट यू कैन कंसिडर वो बहुत सारे पेड़ों के बीच पे था। अब मैं वहाँ पे गया था जुलाई मंथ में। तो वहाँ पे मेरे को जो हमारे सारथी थे जो हमें पिकअप करने आए थे गोवा एयरपोर्ट से और कारवार लेके जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बातों बातों में पूछा कि भैया एक बात पूछूं आपको? मैंने पूछिए। भैया आपको सांप से डर लगता है? तो मैंने बोला पता नहीं, आज तक कभी सामने आया नहीं सांप, सामने आएगा तो ही पता चलेगा डर लगता है कि नहीं लगता है। करेक्ट। अब मैं ऐसे कैसे बोलूं लगता है या नहीं बोलूं, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। तो मतलब पता नहीं भैया, आज तक सांप कभी सामने आए नहीं मेरे, तो मुझे आइडिया नहीं। बोलते नहीं, मैं गारंटी करता हूँ सांप सामने आएंगे आपके ये बात, तो बट इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो यस कैलाश गॉडेस, तो आई सेड कि अच्छा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? नाउ यू लुक एट द लॉजिक बिहाइंड इट। ही सेड कि क्या होता है ना सर, अब बारिश होती है, वर्षा होती है। अब जब बारिश होती है ना, तो सर सांप के बिल में वहां पे पानी भर जाता है। ओके, अब जब सांप के बिल में पानी भरता है तो सांप तो वहां पे रह नहीं सकता है, तो सांप बाहर आते हैं, स्नेक्स बाहर आना चालू होते हैं लॉजिकली। मैंने ठीक है, फेयर इनफ। सो ही सेड कि वहां पे सांप आएंगे। तो आई सेड ओके, फेयर इनफ। Then he told me, and then he explained me, and this is written in the books also, and I'm sure you'll understand the significance. But what happens? I've realized traveling India कि आपको इंसान बहुत कुछ सिखाता है। किताबें शायद थोड़ी कम सिखाती है, बट इंसान आपको बहुत कुछ सिखाती है। उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, आप उनसे बात करें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तब वो मेरे सारथी ने मुझे वहां पे कहा कि सर, होता क्या है ना, नाग पंचमी का ना ये वन ऑफ द रीजंस है, क्योंकि वो जो सांप है वो अब अपने घर में नहीं है, वो बेघर हो गया है, उसे भूख लगी है सर, खाना चाहिए सर, इसके लिए हम उसे दूध पिलाते हैं। सो दैट ही गिव मी द जस्ट लाइक फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव। एंड आई सेड कि बट द स्नेक इज रेप्टाइल और हम दूध पिलाते हैं। बोलते हाँ सर, क्योंकि वो शिव जी के यहाँ पे होते गले में, तो हम उन्हें दूध पिलाते हैं। मैंने अच्छा। और फिर मैंने बोला, तो मैं उनको ऐसे और टू प्रूव फर्दर
कि दूध पिलाने से क्या होता है भैया, तो सांप का एक बार में पेट भर जाता है? बोलते नहीं, करेक्ट करेक्ट, सेम सेम अक्षय से सेम मैंने उनको पूछा कि सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, आई विल कम टू द स्टोरी पार्ट ऑफ इट, देयरफॉर आई टोल्ड यू कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस, आई विल कम टू द स्टोरी पार्ट ऑफ इट. सो आई सेड उसका पेट भर जाता है एक दिन में, मतलब. बोलते सर देखो अभी मान्यता है कि सांप को जो सेवा करता है ना, सांप उसे हमेशा याद रखता है और उसे दसता नहीं है. So somehow he couldn't answer that one day aspect of it. So I thought, there's something deeper to it, because he could explain me the significance of it. तो क्यों घर बाहर कैसे आते हैं बिल के, उनको भूख लगती है, बेघर हो चुके हैं, आप उन्हें दूध पिला दीजिए. Now that is the one aspect. Now coming to the story, why one day? Correct, and that's a very good question, Akshay sir. Why one day? अब जिन्होंने भी महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, आई एम श्योर आपको पता होगा कि उसके अंदर जो अभिमन्यु के बेटे थे, परीक्षित सर, महाराज परीक्षित, तो परीक्षित जी को जो था, उनको अंत में तक्षक करके एक सांप होता है. तक्षक कौन थे? तक्षक स्नेक. तक्षक स्नेक वही थे जब महाभारत में, जब पांडवों को खांडव प्रस्थ मिलता है और कहा जाता है कि आप खांडव प्रस्थ में जाके रहिए, और महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप वहां से रूल कीजिए और ये हस्तिनापुर हम दुर्योधन को देते हैं. अब युधिष्ठिर महाराज को तब झगड़ा नहीं चाहिए तो मान जाते हैं. अब खांडव प्रस्थ के उधर जब जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कितने सारे जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षु सब वहां पे, और वहां पे तो कितने सारे सांप है. उन सांपों का राजा था तक्षक महाराज. अब वहां पे भगवान कृष्ण के कहने पे अग्नि देवता आते हैं, वहां पे पूरी वहां पे आग लग जाती है और वहां पे भयंकर युद्ध होता है अर्जुन का, सब वहां पे जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी दे असुरास के साथ. और वहां पे तक्षक जो है, जो सांपों का राजा था तक्षक महाराज, वो वहां से भाग के निकल जाते हैं. वो वहां से भाग के निकल जाते हैं. ओके, सिर्फ वही बचते हैं. बट तक्षक महाराज उस वक्त प्रण लेते हैं कि क्योंकि अर्जुन ने मेरे यहाँ के जितने भी राज्य में जितने भी सांप थे, मेरे परिवार में थे, सबको मारा, तो मैं भी अर्जुन को मारूंगा. और वो बार बार महाभारत में आते, युद्ध में भी आते हैं अर्जुन को मारने के लिए, पर हर बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं. हर बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं. चलो, अब भगवान कृष्ण वापस बैकुंठ चले गए. भगवान कृष्ण बैकुंठ चले गए तो जितने भी पांडव भाई थे, अब उनको भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था धरती पे, तो वो भी अपने चले गए, अपने क्या कहते हैं, दे टुक अ वॉक टुवर्ड्स द हेवन, अपने शरीर को छोड़ के चले जाते हैं. अब कर्म, और कर्म तो ऐसी चीज है, मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि उन्होंने मुझे कहा था कि बोलता है कि कभी कभी इंसान इतना गलत काम करता है कि भगवान उसको दुख नहीं देता है, उसके बच्चे को दर्द देता है, और वो दर्द का दुख उस इंसान को मिलता है. क्योंकि उसे अगर दर्द मिलता है तो इंसान झेल लेता है, बट अगर उसके पुत्र को या बेटी को कभी दर्द मिलता है तो दुख वो इंसान को मिलता है. वो कर्म ऐसी चीज है जो कभी कैसे ऑपरेट होती है किसी को समझ में नहीं आता है. सो नॉट गोइंग ऑन दैट कर्मा बेस, बट कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी. अब वहां पे होता क्या है कि अर्जुन भी चले गए, सब चले गए. अब युद्ध में अभिमन्यु की जो वाइफ होती है सुभद्रा, वो प्रेग्नेंट होती है युद्ध के वक्त. अब वहां पे वो बाद में एक बेटे को जन्म देती है और उस पुत्र का नाम होता है परीक्षित. बड़ा ही अच्छा राजा थे वो, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने राज्य किया था. अब परीक्षित को मारने के लिए तक्षक वापस आते हैं कि अर्जुन ने मेरे परिवार को मारा था, मैं भी अर्जुन के परिवार को नहीं छोड़ूंगा. अर्जुन तो मर गए, अर्जुन चले गए, फिर भी तक्षक मारा जाते हैं, परीक्षित को मार देते हैं. अब परीक्षित के बेटे को आता है गुस्सा. अब उनको ये बैक स्टोरी पता नहीं है. परीक्षित के बेटे जन्मेजय, उनको आता है गुस्सा कि मेरे पिताजी को तक्षक ने मारा कैसे उनकी हिम्मत हुई कि महाराज परीक्षित को मारा. तो वो एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के अंदर वो कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी सांप हैं उन सबको अब इस यज्ञ के अंदर, इस फायर के अंदर आना पड़ेगा और उस सब सांपों को मैं मार दूंगा. अब वो इतना भयंकर यज्ञ होता है, सांप उड़ उड़ के आ रहे होते हैं और सब उस यज्ञ के अंदर उस भस्म हो रहे होते हैं, सब मर रहे होते हैं. उस वक्त वहां पर एक ब्राह्मण आते हैं, अस्तिका ऋषि, और वो कहते हैं कि महाराज आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये तो आपके पूर्वजों का कर्म है जो आपको भुगतना पड़ रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो. तब वहां पे जाके उनको पूरी कथा पता चलती है और वो यज्ञ को रोका जाता है. और उस दिन को, उस एक दिन को आज तक हम नाग पंचमी कह के
पुकारते हैं, हम उनको दूध पिलाते हैं, शांत कराते हैं, खाना खिलाते, सॉरी, दूध पिलाते हैं, शांत कराते हैं, पानी पिलाते हैं, सब करते हैं। नाग पंचमी का ये वहां से स्टोरी आती है। और नागों की भी एक अच्छी बात होती है कि वासुकी स्नेक जो है, अगर आप देखेंगे शिव जी के हमेशा गले के वहां पे होते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा ना वासुकी स्नेक का, वो हमेशा शिव जी की, आप कोई भी मूर्ति देखना, आप कोई भी फोटो देखना, कोई भी आप पेंटिंग देखना ऑथेंटिक, ओके, आपको हमेशा दिखेगा जो सांप है ना वो आगे देख रहा होता है, कभी भी पीछे नहीं देख रहा होता है। आप कभी भी देखना, अगर मेरे पास कोई फोटो, हाँ ये फोटो में देखिए, विल कम टू द स्टोरी, वो जो सांप है वो हमेशा ना आगे देखता है, कभी भी पीछे नहीं देखता है। और सांप है शिव जी के गले में। मतलब ऑनेस्टली मुझे आपका नहीं पता, मुझे तो सांप दिख जाए मैं तो वहां से भाग जाऊं। सांप के नजदीक तो जाना बहुत दूर की बात, सांप को पकड़ना भी बहुत दूर की बात, सांप को गले में ओढ़ के बैठना तो बाप रे हो ही नहीं सकता है। सिर्फ भोलेनाथ ही मुझे लगता है ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें भी एक सीख है, इसमें भी एक लर्निंग है। होता है क्या कि कैलाश में जब वो सांप होते हैं तो उनको वहां पे बहुत ठंड लग रही होती है, ठंड से कई सारे सांप मर रहे होते हैं। तो भोलेनाथ विघ्नहर्ता के पिताजी प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे। वो कहते हैं कि तुम आ जाओ मेरे बदन पर, मुझसे गर्मी ले लो, और वो सांप शिव जी के वो बदन पे आ जाते हैं। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो सांप हमेशा आगे देखता है, पीछे नहीं देखता है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेंड अस अ मैसेज कि जो हो गया, उसको बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं है, लाइफ इज अहेड, जो होएगा अब आगे देखो। पीछे बार बार देख के रिग्रेट करना, रोना, उसको क्या कहते हैं, बार बार इमेजिन करके डिस्टर्ब होना सेंस नहीं है, अब आगे देखिए। सेकेंड, स्नेक कैन बाइट यू एनी टाइम, कभी भी वो आके आपको काट सकते हैं। तो इमेजिन करते हैं हाइपोथेटिकली, अगर उस वासुकी सांप अगर शिवजी को बाइट भी करने जाएंगे तो शिवजी उनको पकड़ लेंगे। दैट इज हिज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज हिज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सो वो स्टेट, वो फ्रेम पे आने के लिए, ओके, वी रिक्वायर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा, so that we can kill all the vices, control our senses, and increase our consciousness. Fair enough? चलिए अभी एक कहानी, एक क्वेश्चन। आपने फोटो देखी है? ओके, अभी एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। कहा जाता है कि शिव जी ने अपनी हंगर को भी ओवर पावर कर लिया, उनको भूख नहीं लगती है, नो डिजायर, नथिंग। फिर भी यहां पे अगर आप देखेंगे वो मां अन्नपूर्णा के सामने खड़े हैं और राइस ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं। कैन एनीवन प्लीज टेल मी ऐसा क्यों? ये तो वही हो गया कि जैसे आपको भूख ही नहीं है, आपका पेट में आपको भूख ही नहीं है, तो क्या हम अपनी माता के पास जाते हैं, अपनी बीवी को या अपनी भाभी को या अपने बच्चों बेटी को कहेंगे कि मुझे खाना दो? भूख ही नहीं है, पेट में भूख ही नहीं है, तो कोई खाना मांगता है क्या? Do you ask food when you are not hungry? Can you please let me know? Do you ask food? Do you ask for food when you are not hungry? Correct. Do you ask for food when you're not hungry? Correct, Natarajan sir, but we'll come to the entire story. Others, couple of people have said no. Do you ask for food when you're not hungry? Correct. Correct. तो इसके पीछे की आपको कहानी पता है? तो नटराजन सर ने मतलब लर्निंग दे दी, विच इज राइट, बट इसके पीछे की कहानी आपको पता है? ये फोटो बहुत पॉपुलर है, आई एम श्योर सबने देखी होगी, बट ये फोटो में ना मुझको ये पॉइंट आ रहा था कि मन में आया कि अगर मुझे भूख ही नहीं है तो मैं तो अपने घर वालों से कभी खाना ही नहीं मांगू, मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं क्यों मांगू, तो भगवान शिव क्यों खड़े हैं माते के सामने और खाना मांग रहे हैं? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं अभी आपको स्टोरी बताता हूं और उसमें से सीखने को कितना कुछ मिलता है। आपको याद है मैंने कहा था कुछ देर पहले कि ये ट्रांजिशन है, ब्रह्मा इज इनसिक्योर, then comes Vishnu who's a secured, and then comes Shiva that is content. And how do we move from a secured person to a content person or a leader? ये वो कहानी हमको बताएगी। Okay, now let's start.
होता क्या है कि एक दिन भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो उन लोग एक गेम ऑफ डाइस खेल रहे हैं, ठीक है। कभी शिव जी जीत रहे हैं, कभी पार्वती माता जीत रही है, दोनों हंस खेल रहे हैं। अब पार्वती माता कहती कि चलो कुछ मजा करते हैं, गेम खेलते हैं। तो अगर अगर मैं कुछ हारी तो मैं आपको कुछ दूंगी, आप कुछ हारोगे तो आप मुझे कुछ दोगे। तो फिर भगवान शिव कहते हैं कि अरे बट मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं तो बहराग, कुछ भी नहीं है। अरे पति पत्नी में क्या लेना देना, चलता है। तो भगवान शिव बोलते चलो ठीक है, चलो खेलते हैं, पति पत्नी की तो बात है। अब शिव जी और पार्वती माता खेलना शुरू करते हैं और एक एक करके शिव जी सब गेम हार जाते हैं। कभी डमरू हार रहे, कभी वासुकी सांप स्नेक को हार रहे, कभी त्रिशूल हार रहे, एक एक करके सब हारने लग गए। अब शिव जी बाहर निकलते हैं, सोचते हो क्या हारे, मैं सब कैसे हार गया। अब वहां पे उनको मिलते हैं विष्णु भगवान, वहां पे उनको मिलते हैं विष्णु देवता। और विष्णु भगवान पूछते हैं क्या हुआ प्रभु, आप थोड़े क्या कहते हैं डिस्टर्ब लग रहे, क्या हुआ, चिंता में लग रहे हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि पता है मैं पार्वती के साथ खेल रहा था और पहले कभी मैं जीता कभी वो जीती, हार जीत चल रही थी। बट जैसे पार्वती ने कहा कि हम कुछ खेलते हैं, अगर मैं कुछ हारी तो मैं आपको कुछ दूंगी, आप कुछ हारो तो आप मुझे कुछ दो, उसके बाद तो मैं एक भी राउंड नहीं जीता यार, सब हार गया, ऐसे कैसे हो गया। तो विष्णु देवता हंसते मुस्कुरा के कहता है अरे प्रभु कोई बात नहीं, वापस जाइए और खेलिए, वापस जाइए और खेलिए, देखो क्या होता है। तो वो कहते हैं बट मेरे पास तो कुछ हारने के लिए है ही नहीं। अरे पति पत्नी में क्या हार जीत, जाइए खेलिए। तो शिव जी जाते हैं और पार्वती को कहते हैं कि चलो खेलते हैं। तो पार्वती माता भी खेलती है और इस बार प्रभु शिव सब जीत जाते हैं। इस बार महादेव सब जीत जाते हैं। अब क्या होता है, पति जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी हस्बैंड हूं, तो हम पतियों को लगता है कि हम अपनी पत्नी को कुछ बताएं या कुछ नहीं बताएं, हम कुछ छुपाएं या अनजाने में हम या नहीं बताना चाहे तो पत्नी को नहीं समझ में आता है जब तक हम बताएंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, पत्नी को सब समझ में आ जाता है, पत्नी को सब कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ। तो शिव जी बड़े खुश हो गए, सब कुछ वापस आ गया, बैठे आराम से। पार्वती माता ने पूछा प्रभु आप बाहर गए थे ना, आपको बाहर कौन मिला। तो शिव जी बोलते मुझे तो विष्णु देवता मिले। तो पार्वती माता मुस्कुरा के कहती है मैं सब समझ गई, ये सब विष्णु देवता का किया कराया है, विष्णु देवता को बुलाया जाए। अब विष्णु देवता आते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि माते मैं तो बस मस्ती कर रहा था, बट सब कुछ मेरी ही माया है, ये सब मैं आपके साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। अगर आप देखेंगे विष्णु जी जो है वो पार्वती माता को हमेशा बहन मानते हैं। तो जो भी कोई भी अवतार आता है विष्णु देवता का और पार्वती जी का, या पार्वती के कोई भी अलग अवतारों के भी अवतार आते हैं, तो विष्णु देवता और वो हमेशा भाई बहन होते हैं, करेक्ट। तो वो एक एस्पेक्ट है। जैसे माना जाता है द्रौपदी भी जो थी वो काली माता का अवतार है, और कृष्ण जो थे वो विष्णु के अवतार। तो कृष्ण और द्रौपदी भी हमेशा भाई बहन के ही रिलेशनशिप में है। तो ये वहां पे विष्णु देवता कहते हैं आप तो जानते हो मेरी बहनों में तो ऐसी थोड़ी आपके साथ मस्ती कर रहा था। तो चलो सब हंसना चालू करते हैं। अब शिव जी हंसते हंसते फिलोसफी में बात करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं मैं सब समझ गया आज। तो ये लोग पूछते हैं क्या समझे प्रभु, क्योंकि उनको पता है कि जब शिव जी ज्ञान बांटेंगे तो प्रथम ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान देंगे। तो ये लोग दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बोलिए प्रभु क्या समझे। वो कहते हैं कि ये सब कुछ माया है, कभी मेरा है वो तुम्हारे पास होगा, कभी तुम्हारा है जो वो मेरे पास होगा, या वो किसी और का है, ये सब माया है। ये दुनिया माया है, पैसा माया है, यश माया है, भूख माया है। जब शिव जी कहते हैं भूख माया है, जब शिव जी कहते हैं भूख माया है, उस वक्त पार्वती माता कहती है कि प्रभु भूख माया कैसे हो सकती है। कोई इंसान कपड़ों के बगैर रह सकता है, कोई छत के बगैर रह सकता है, कोई चलो पैसा नहीं हुए कुछ करके कैसे भी जीवित रह सकता है, बट भूख खाने के बगैर कोई कैसे रह सकता है प्रभु। भूख हकीकत है, भूख माया नहीं है। तो शिव जी कहते हैं मैंने भूख पे विजय प्राप्त की है, तुम भी प्राप्त कर सकते हो, पूरा दुनिया जो है भूख के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, भूख भी माया है। पार्वती माता कहती है प्रभु भूख माया नहीं है, भूख हकीकत है। प्रभु कहते हैं कि मैं कह रहा हूं भूख माया है, सब कुछ माया है। जब वो कहते हैं कि भूख माया और सब कुछ माया, तब पार्वती माता उनको पूछती है प्रभु सब माया है,
प्रभु कहते हैं हाँ सब माया है। पार्वती माता कहती है प्रभु आप कहना चाहते हो कि सब कुछ माया है? तो भोलेनाथ कहते हैं हाँ हाँ सब कुछ माया है। तो पार्वती माता कहती है ठीक है सब माया है तो मैं भी माया हूं, तो आप मेरे बगैर भी रह सकते हो। पार्वती माता वहां से गायब हो जाती है। अब पार्वती माता गायब, शिव भगवान सोचने लगे ये क्या हो गया, पार्वती कहाँ गई? दुनिया में से शक्ति गायब हो गई, लोगों का विल पावर वीक हो गया, लोगों की मृत्यु होने लग गई। बट आप एक बात जरूर मानेंगे, माँ माँ होती है। पार्वती माता को भी रियलाइज हुआ कि ठीक है ये पति पत्नी के मुठभेड़ में मेरे बच्चों की मृत्यु हो रही है, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम कम हो रहा है, वो जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। उस वक्त पार्वती माता का एक अवतार, अन्नपूर्णा माता का अवतार लेके वाराणसी के वहां पे आते हैं, और वहां पे लाइन लगती है लोगों की, और सब खाने के लिए वहां पे इंतजार करते हैं। और अन्नपूर्णा माता अपने हाथों से खाना सबको खिलाती है। अन्नपूर्णा माता वहां पे अपने हाथों से सबको खाना खिलाती है, और उस लाइन में लॉर्ड शिवा, भगवान शिव भी खड़े थे। जैसे भगवान शिव वहां पे आते हैं और पूछते हैं मुझे खाना दो माते, तो तब मां अन्नपूर्णा मुस्कुरा के पूछते हैं प्रभु सब माया है, भूख भी माया है, तो आपको खाना क्यों चाहिए? तब शिव जी कहते हैं, एंड प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, तब शिव जी कहते हैं मुझे भूख नहीं है, मुझे ये अपने लिए नहीं चाहिए, बट मेरे परिवार वालों को चाहिए, मेरे भक्त जनों को चाहिए, मेरे डिवोटीज को चाहिए, मेरे डिसाइपल्स को चाहिए, मेरे यहाँ पे हर एक इंसान को चाहिए। ये खाना मैं उनके लिए मांग रहा हूँ माते, कि मैं उनको जाके खाना खिला दूं। आज मैं समझ गया हूं कि भले मुझे कुछ नहीं चाहिए है, पर मुझे दूसरों के लिए तो कार्य करना होगा। और उस वक्त माँ उनको खाना देती है। नाउ इफ यू सी, आई एम श्योर ये स्टोरी, ये फोटो आपने देखी होगी, कई लोगों को स्टोरी भी पता होगी, बट ये स्टोरी में जो डीप लर्निंग जो मुझे समझी, एंड आई एम श्योर आप लोग को भी आपने डिकोड की होगी या पढ़ी होगी पहले, या फिर आपको खुद को रियलाइज होएगा, बट जो मुझे एक लर्निंग समझी, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा कि यहाँ पे एज ए लीडर, इफ आई टेक लॉर्ड शिवा एज ए लीडर उनको कोई डिजायर्स नहीं है, उनको कोई ग्रीड नहीं है, उनको कोई हंगर नहीं है, उनके कोई वाइसेस नहीं है, बट फिर भी वो लीडर काम कर रहे हैं उनकी टीम मेंबर्स के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए। नाउ ही इज वर्किंग नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर पीपल, एंड दैट इज वेयर यू बिकम कंटेंट, that is where you get satisfaction in life, and that is where you become Lord Shiva. जब आप आपके लिए नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो। सांप को गर्मी लगी, ठंडी लग रही है, मेरे पास आ जाओ। गंगा मैया को धरती में जाना है क्योंकि भागीरथ साहब को चाहिए कि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिले, बट गंगा मैया नहीं जा सकती है, तुम मेरी जटाओं में आओ, और जटाओं से आके मेरी जांघों से निकलो तो मैं जान भी पुकारा जाएगा। सब कुछ उन्होंने झेला है, सब कुछ दूसरों के लिए झेला है, सब कुछ दूसरों के लिए किया है। जब आप दूसरों के लिए करते हो, तब जाके आप शिवा बनते हो, तब जाके आप शिव बनते हो। अब जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स होंगे, मैं कोई भी प्लीज अगर आपको कोई नाम पसंद नहीं है तो मुझे क्षमा करना, बट मैं उनको सिर्फ एक कंपैरिजन में बताना चाहता हूं कि कब आप एक कंटेंट, एक सैटिस्फाइड लीडर बनते हो, जब आप दूसरों के लिए करते हो। अगर आप देखेंगे सर रतन टाटा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी हो गए, नारायण मूर्ति साहब हो गए, अजीम प्रेमजी साहब हो गए, ऑल दीज पीपल आर वर्किंग फॉर अदर्स। आनंद महिंद्रा साहब हो गए, इट कुड बी कुमार मंगलम बिरला, इतना सारा पैसा उनके पास है, बट आप क्यों काम कर रहे हैं? आई एम श्योर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी डिजायर्स है, सब पैसा तो है उनके पास, मुकेश अंबानी साहब हो गए, बट व्हाई आर दे वर्किंग? दे वर्किंग फॉर अदर्स नाउ, so that others can benefit, so that others can learn. ये सब हमारे हमको जो दिखाया, समझाया गया है, the day you move out of your insecurity, and how do you move out of your insecurity is by becoming a Vishnu. And how do you become a Vishnu? By walk the talk. आपको करके दिखाना पड़ता है। राम जी को करके दिखाना पड़ा कि रावण को कैसे मारना है, राम राज्य कैसे बनाना है। कृष्ण जी को बताना पड़ा ज्ञान देके कि देखो कितना इसमें ज्ञान है। तो इसके अंदर उन्होंने सब करके दिखाया है, दूसरों को गाइड करके दिखाया है, दूसरों से नॉलेज शेयर करके बताया है। सो देन यू मूव फ्रॉम अ इनसिक्योर टू अ सिक्योर प्लेस, दैट इज फ्रॉम अ ब्रह्मा टू अ विष्णु, वेयर यू आर डूइंग इट, वेयर यू आर शोइंग देम एवरीथिंग। बट फ्रॉम अ विष्णु टू अ शिवा is where you are not doing it anything related to you, where it is nothing to do for you, but it is to do for the society, for the welfare of the people, and that is Shiva. Correct?
I hope good till here. Correct. So really a Purana Steve. So therefore, when we wrote the book, my wife and I have written a book called Break Your Leadership Chakravyuh, where we have taken so many stories, where we have taken so many concepts, and we have tried to explain कि हमको कोई भी concept जो हमको लगता है कि आज exist हुआ है या Western world का है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारी books में नहीं लिखा है. It is so simple. हमको सिर्फ वो नजरिए से पढ़ना है. हमको सिर्फ वो नजरिए से देखना क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. Thank you so much for the feedback and thank you so much for the compliments. So let's move ahead. अब अर्धनारीश्वर, I'm sure ये फोटो आप सबने देखी होगी. I'm sure आप आप सबको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली होगी, समझने को भी मिली होगी. But just to simplify, ये फोटो में अगर आप देखेंगे, इनको पुरुष एंड प्रकृति भी कहा जाता है. माँ पार्वती और प्रभु शिव को पुरुष और प्रकृति भी कहा जाता है. पुरुष over here does not mean man, male. No, it does not mean that. What it means is, it is the creator and the nature are together. It is the creator and the nature are together. That is what it means by Purush and Prakriti. I am a man. I can, when I have a relationship with my wife, we'll have children. So the creator and the nature, when both of them form together, there is life that gets created. There is masculine qualities, there's feminine qualities. हम जब पूरी qualities मिलते हैं, तब जाके हम complete होते हैं. Over here, I also, I really admire this photo a lot because it tells us that your wife is as good as you, your husband is as good as you. Your wife will complete you. Your husband will complete you. And it is not physically, it is emotionally. वो कहा जाता है ना, on a lighter note, that if you marry the right person, you are complete. If you marry the wrong person, you're finished. It's something like this. आप अगर अपनी वाइफ के साथ, आई एम जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ वाइफ, अपने स्पाउस के साथ भी होंगे, तो अगर आप जैसे उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, कुछ आप उनसे सीखते हैं, कुछ आप उनको सिखाते हैं, आप उनको उतना ही मान सम्मान इज्जत देते हैं, कई चीजें आप उनकी मदद करेंगे, कई चीजें वो आपकी मदद करेंगे, तब जाके अर्धनारीश्वर होता है. It is such a simple thing they have taught, that no one is superior to the other person. इसमें एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होता है. तो इसमें प्रभु शिव बैठे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं. वहां पे माँ पार्वती देख के बड़ी खुश होती है और कहती है कि प्रभु, मैं आपके जैसे बनना चाहती हूँ. बिकॉज ही इज इन मेडिटेशन, आराम कर रहे हैं. तो शिव जी कहते हैं, आइए मेरे ऊपर बैठिए. अपनी लैप पे बैठने के लिए कहते हैं. जैसे वो उनकी लैप पे बैठते हैं, तब शिव जी कहते हैं, तुम्हें मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है, ना मुझे तुम्हारे जैसे बनने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम और मैं मिलते हैं तब हम बनते हैं और फिर अर्धनारीश्वर होता है. I think it was one of the best lesson that Lord Shiva has taught us how to handle marriage. He says, तुम्हें मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है, ना मुझे तुम्हें जैसे. तुम और मैं मिलते हैं तब जाके हम बनता है और हम अर्धनारीश्वर बनते हैं. What a beautiful way and such a simple way to explain how to handle marriage. What an amazing way. और ये मतलब I just fell in love with that conversation. कितना simple, and it could be for any relationship. It is just the energies that has to match. It is just the energy that have to meet. Don't try to change the other person. We are complete because of each other. चलिए, thank you so much. अभी एक और चीज, दो चीजें ना अभी. I'd like to we got time. Thank you. So I'll take one story and one aspect of Lord Shiva, and then we'll take it from there. I'm sure आप सबने ये पढ़ा होगा. मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी तो बहुत बड़ा त्योहार है. It's one of the biggest festival in Mumbai and Maharashtra, if not the biggest. अब वहां पे I'm sure आप सबने स्टोरी, वो कहानी पढ़ी होगी कि जब माँ पार्वती स्नान करने के लिए जाती है और वहां पे
वो देखती कि यहाँ पे तो आज कोई है ही नहीं, करेक्ट, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अब वहां पे वो फिर अपने सैंडलवुड से यहाँ से एक इंसान को जन्म देती है और कहती है कि जब तक मैं बाहर नहीं आऊं, जब तक मैं बाहर नहीं आऊं, तब तक तुम किसी को अंदर नहीं आने देना, जब तक मैं बाहर नहीं आऊं तब तक तुम किसी को अंदर नहीं आने देना। वो लड़का कहता है, हाँ माते, आप मेरी माँ हो, आपने मुझे आदेश दिया है, कोई नहीं आएगा। अब जैसे पुराने जमाने में कहावत थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, करेक्ट, तो वो टाइप का एक कमिटमेंट वो बेटा अपनी माता को देता है। अब वहां पे शिव जी साथ उनके गण, उनके डिसाइपल्स आते हैं और शिव जी देखते हैं कि यहाँ पे कोई खड़ा है, तो शिव जी कहते हैं कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो वो लड़का कहता है कि क्षमा करना, माते ने मुझे कहा है कि अंदर कोई नहीं जा सकता है और मैं आपको अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूँ जब तक माता बाहर नहीं आती, क्योंकि मुझे माता ने कहा है मुझे क्षमा करना। तो द बॉय इज वेरी हम्बल, ग्रैटिट्यूड, रिक्वेस्टिंग। तो शिव जी भी कहते कि तुम जिस माता के बारे में बात कर रहे हो वो मेरी अर्धांगिनी है, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। तो वो कहते कि सर, प्रभु करेक्ट है, बट माता ने मना, क्यों, मैंने माता को कहा मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। अब शिवजी और गणेश जी के बीच में वो टाइम पे आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, आप कोई भी देखेंगे, तभी कुछ नहीं होता है, बट शिवजी के डिसाइपल्स को खराब लगता है कि हमारे प्रभु को कैसे मना कर दिया, हमारे प्रभु को कैसे मना कर दिया। अब वो युद्ध करना चालू करते हैं। अब गणपति जी भी मां पार्वती के बेटे, शक्ति के बेटे, अब उनको कौन हरा पाए। वो डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रहे हैं, युद्ध करते हैं, एक से एक बड़ा डिसाइपल आता है, गणेश जी सबको हराते हैं, सबको हराते हैं, सबको मारते हैं, ये करते वो करते हैं। बट इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, अब वो युद्ध करते करते सबको हराते हैं, सबको मारते हैं, सबको हराते हैं, सबको मारते हैं, और वो पूरे की पूरे डिसाइपल्स वहां पे हार के थक जाते हैं। कोई इंजर हो जाता है, किसी को बड़ी बुरी तरह लगता है, कोई हार जाता है, कोई थक जाता है, कोई भाग जाता है, सब होते हैं। और वहां पे शिव जी देख रहे होते हैं। और उस वक्त गणपति बापा, बाद में जब गणपति बापा वहां पे कहते हैं शिव जी को, और ये प्लीज आप बुक्स पढ़ना, ये प्लीज आप रिसर्च करना जो मैं कह रहा हूं, वहां पे क्या होता है उस वक्त। गणपति पापा फिर शिव जी को कहते हैं कि अब आप वहां पे क्यों खड़े हो, आप मुझसे युद्ध नहीं करोगे, आपके सब सारथियों को तो मैंने मार दिया, आप भी आके मुझसे युद्ध कर सकते हो, आप भी आके मुझसे युद्ध कर सकते हो। अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से अब देखना, अब होता क्या है, शिवजी ने कितनी बड़ी सीख दी है हमें। अब उस वक्त वहां पे शिवजी खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर गणपति बापा स्टार्ट्स चैलेंजिंग लॉर्ड शिवा। फिर वो शिवजी को कहते कि आपको डर लग रहा है, आप भी आइए, आप सबको तो हरा दिया। उस वक्त शिवजी अपना त्रिशूल निकालते हैं, उस वक्त शिवजी अपना त्रिशूल निकालते हैं और गणेश जी के सर को काटते हैं, गणेश जी के सर को काटते हैं। जबकि वो त्रिशूल से वो किधर भी अटैक कर सकते थे, हार्ट पे कर सकते थे, पेट पे कर सकते थे, आंखों से कर सकते, किधर भी कर सकते थे, सर को ही काटते हैं। इसका टर्म में लेके चलते हैं, इसको हम एक मेटाफर टर्म में लेके चलते हैं कि सर को ही क्यों काटा, उनके दिल पे क्यों नहीं वार किया त्रिशूल के साथ, सर को क्यों काटा। अब होता क्या है समझने के लिए देखते हैं कि अब एक कॉन्वर्सेशन अभी आप शिवजी और गणपति बापा के बीच में मत देखिए, अभी आप ये कॉन्वर्सेशन देखिए कि एक पिता और एक बेटे के बीच में हो रहा है, एक पिता और एक बेटे के बीच में हो रहा है। अब वहां पे पिताजी को उनका बेटा कहता है कि माते ने मुझे बोला है कि आप अंदर नहीं जा सकते, कोई नहीं अंदर जा सकता है। तो उस वक्त भी पिताजी खड़े हैं वहां पे साइड में, बात कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। गणपति बापा भी प्रेम से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। फिर गणपति जी को उनके डिसाइपल्स ने अटैक किया शिव जी के। अब गणपति बापा उनको मार रहे हैं, तब तक पिताजी साइड में खड़े हैं। गणपति बापा उनको अटैक करते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, कि कई लोगों को इंजर करते हैं, मृत्यु दिलाते हैं, कोई लोग भाग जाते हैं। वहां पे फिर भी उनके पिताजी साइड में खड़े हैं। उसके बाद उनके पिताजी मुस्कुरा के एडमायर कर रहे हैं, कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेटा है मेरा, कितना अच्छा पार्वती का बच्चा, वाह पार्वती ने क्या किया, एडमायर कर रहे हैं, बिकॉज हिज सन इज नाउ is doing a good job, excellent, wow, what a wonderful way he's handling the entire world, he's handling all the challenges that have been thrown up to him.
He is admiring his son that moment. आप अगर फादर हो, आप इमेजिन करो, यू विजुअलाइज कि आपके बेटे के ऊपर दुनिया भर की मुसीबतें आ रही है और आपका बेटा सबको हरा रहा है। आपके बेटे के ऊपर दुश्मनों का अटैक हो रहा है और आपका बेटा उनको हरा रहा है। आपके बेटे के ऊपर सब लोग टूट पड़े, उनको बुरा भला के उनको हराने के लिए, फिर भी आपके बेटे ने सबको हरा दिया। As a father, what an amazing moment. Admiration, admiring his son. बट होता क्या है, गणपति बापा को अब अहंकार आने लग गया और उन्होंने अपने ही पिताजी को कह दिया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो युद्ध करने। तब भोलेनाथ, रुद्र, महादेव, शिव, शंकर, जो भी नाम से पुकारो, तब उनको समझ गए कि मेरा बेटे के मन में अब अहंकार जन्म ले रहा है। मेरे बेटे के मन के अंदर अब उसको लग रहा है कि वो सब कुछ कर सकता है और मुझे भी हरा सकता है। एज अ फादर आई हैव टू एंश्योर कि उसका अहंकार मिटाऊं। अहंकार किधर होता है? हमारे मन में होता है। उसके सर को इधर से कर दिया, सर को काट दिया, अहंकार मिटा दिया। वो 3 त्रिशूल के जो स्पाइक्स होते हैं वो उनका होता है रजस, तमस और सत्व। जितनी भी वाइसेस थी, जितने भी उनके अंदर बुरे विचार थे, जितना भी अहंकार आया था, जितना भी लोभ, जितना भी डिजायर, जितना भी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन लॉर्ड गणेश अपने बारे सोच रहे थे, उसी वक्त रजस और तमस को वहां पे कट कर दिया और सत्व गुण की स्थापना कर दी। उसी वक्त सत्व गुण की स्थापना कर दी। ये सिखाया शिव जी ने कि तुम्हारा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, दुनिया को जीत ले, बट अगर तुम्हारा बेटा तुमसे बुरी तरह बात करता है, उधर ही तुम उसको थप्पड़ मार दो। अगर तुमने थप्पड़ नहीं मारा तो तुम्हारा बेटा फिर से तुमसे बुरी तरह बात करेगा। तब दूसरी बात जब तुम्हारे बेटे ने बुरी तरह बात की तो गलती तुम्हारे बेटे की नहीं, वो तुम्हारी गलती होगी। इसलिए शिव जी ने वहां पे गणपति जी का सर को धड़ से अलग कर दिया और सत्व गुण ले आए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगती है, सो I'll just take 5 minutes, I hope I got time. So एक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है, शिव जी को जो नाम मिला, शिव जी को जो नाम मिला नीलकंठ का, मुझे लगता है कि उससे अच्छी लर्निंग आज तक मुझे भगवान शिव से मैंने बहुत सीखने की कोशिश की है। कुछ चीजें इंप्लीमेंट भी करते हैं, कुछ चीजें बार बार प्रैक्टिस करते हैं, कुछ चीजें कभी भूल जाते हैं, बट ये एक ऐसी लर्निंग मुझे मिली है भगवान शिव से, नीलकंठ जी के नाम से जब हम उनको पुकारते हैं। मैं आपसे ना स्टोरी पहले थोड़ी शेयर करना चाहूंगा और फिर मैं अपनी लर्निंग शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है जितनी मुझे अच्छी वो लगी लर्निंग, मैं होप करता हूँ आपको भी लर्निंग शायद उतनी अच्छी लगे। अब होता क्या है कि समुद्र मंथन होता है। सॉरी, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ समुद्र मंथन, क्योंकि समुद्र मंथन समझाने के लिए मुझे पौना 1 घंटा लग जाता है। बट समुद्र मंथन वाज बेसिकली अ चर्निंग ऑफ an ocean that took place in the cosmic world. Now over there देवास और असुरास एक दूसरे को हेल्प करते हैं अलग अलग आर्टिकल्स निकालने के लिए। ओके, अब वहां पे विष्णु देवता जो है वो अपना सेकंड अवतार टॉर्टाइस का लाते हैं और वो माउंटेन समुद्र मंथन के ऊपर खड़ा होता है। वासुकी स्नेक जो शिव जी के गले में होता है, उसकी सहायता ली जाती है चर्निंग करने के लिए। जो देवास होते हैं वासुकी के पूंछ के वहां पे खड़े होते हैं, टेल के वहां पे खड़े होते हैं, और जो असुरास होते हैं वासुकी के मुंह के वहां पे खड़े होते हैं। अब वो जो चर्निंग होती है ना, वो बड़ी सिस्टमैटिक वे होती है कि एक तरफ से जब देवास खींचते तो वासुकी का मुंह छोड़ना पड़ता है असुरास को, और जब असुरास मुंह खींचते हैं तो देवास को वो टेल छोड़ना पड़ता है। अब इसमें बेचारे वासुकी से आपकी हालत होगी, दर्द हो रहा है ना, क्योंकि आपको माउंटेन से आपको क्या कहते हैं आपकी और खींच रहे हैं, दुख है, दर्द हो रहा है। और वासुकी स्नेक ना पूरे अपने मुंह से पूरा पॉइजन निकाल देते हैं और उनकी हालत हो जाती है, अब आराम करते हैं। अब वो पॉइजन लेगा कौन? वो पॉइजन अब लेगा कौन? सब खड़े होके देखते हैं और पॉइजन स्प्रेड होना चालू हो रहा है। उस पॉइजन स्प्रेड होता चला गया, यूनिवर्स, प्रकृति जो इतना सब किया वो सब किया कराया सब गया व्यर्थ। अब होगा क्या? अब आते हैं भोलेनाथ। अब भोलेनाथ आते हैं, वासुकी ने जो विष निकाला है वो विष को पूरा अपने पी जाते हैं। अब ये देख के मां पार्वती घबरा जाती है। अब पति पत्नी का देखो,
पति ने तो कर दिया, भोलेनाथ ने दूसरों की सहायता करने के चक्कर में खुद का नहीं सोचा, दूसरों का सोचा, बट पत्नी का धर्म, पत्नी का फर्ज, पत्नी का प्रेम देखो पति की तरफ, वो भागकर आती है पार्वती माता, उनका यहाँ पे गला दबाती है जोर से, और पूरा का पूरा जो जहर है वो गले में दब जाता है। तब विष्णु देवता आते हैं और कहते हैं कि महादेव, आज से लोग आपको नीलकंठ के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि ये जो कंठ है इसे कंठ कहते हैं, और ये पूरा नील, दैट इज ब्लू कलर हो गया बिकॉज ऑफ द पॉइजन दैट इज देयर। सॉरी, कौर्म वाज द थर्ड अवतार, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे जो है वो आपका नीलकंठ है हो गया। अब ये तो स्टोरी हो गई, आई एम श्योर सबको पता होगा, बट इसमें मुझे एक बात समझनी थी, इसमें मुझे एक बात समझनी थी। वो तो महादेव है, उनको तो विश शायद कुछ ना कर पाए, एक समझ के चलते खाली, वो विश कुछ ना कर पाए, करेक्ट? वो तो महादेव है, देवों के देव महादेव। फिर भी मां पार्वती ने यहां पे आके क्यों दबाया वो कंठ, उनका कंठ दबाया, और यहां पे क्यों आके पॉइजन को रोक दिया? वाई? क्यों? करेक्ट? क्यों? अब जितना मुझे समझा, ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मैंने शायद पढ़ा था या मुझे ध्यान में, पर मेरी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग में शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेटाफर टर्म है टू एक्सप्लेन अस हाउ टू हैंडल पॉइजन दैट एंटर्स आवर माइंड और हार्ट। जब हमारे दिल में, हृदय में किसी के लिए पॉइजन होता है, हम उसे बोलते हैं, हमारी जुबान पे आ जाता है। अगर हमारे मन में किसी के लिए जहर है तो भी हम बात करते हैं और हमारी जुबान पे आ जाता है, हमारी जुबान से खराब शब्द निकलते हैं। अब यहां पर क्या किया माता ने यहां पे ही रोक दिया पॉइजन। वो पॉइजन ना हृदय तक गया, ना वो जो विष था उनके सर तक गया। तो इसके लिए भोलेनाथ के मुंह पे कभी भी कोई बुरा शब्द नहीं निकला। अगर हमारी जिंदगी में भी हमको कोई पॉइजन देता है, टफ है, आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग टू बी ऑनेस्ट, टफ है, बट वो उनके लिए जो पॉइजन है, ना हमारे हृदय तक जाना चाहिए, ना हमारे मन तक जाना चाहिए, वो इन दोनों के बीच में कैसे भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए, और जो भी होए हमारी जबान पे तो कभी भी नहीं आना चाहिए। भोलेनाथ ने इतनी अच्छी तरह समझाया कि हाउ टू हैंडल रिलेशन। और अगर आप देखेंगे ये जो देवास और असुराज में होता है, अगर आपने नोट किया होगा कि जितने बहुत सारे असुराज या बहुत सारे जो विलेंस हैं एज इन आवर बुक्स, सो इट कुड बी रावण, इट कुड बी दुर्योधन, और कोई भी अगर आप देखेंगे वो सब महादेव के भक्त हैं, कोई विष्णु के भक्त नहीं है। जो नाम मैंने लिया और इनके जैसे जो डीमंस थे, सब महादेव के भक्त थे। तो मेरे बेटे ने मुझे इनफैक्ट पूछा, मेरा बेटा है 6 साल का पार्थ, मेरी बेटी है 9 साल की क्यारा, उन दोनों ने मुझे एक्चुअली पूछा था लास्ट 2 महीने पहले कि पापा आप जो भी स्टोरी हमको बताते हो, वो सब महादेव को याद कर रहे हैं, विष्णु को तो पूछ ही नहीं रहे। तो मैंने भी सोचा ध्यान से, और फिर मैंने उनको जवाब दिया, आप प्लीज बताना कि सही या गलत। तो मैंने उन्हें कहा, मेरा देखो बेटा, होता क्या है, विष्णु जो है वो कर्म देखते हैं, महादेव जो है वो भक्ति भी देखते हैं। महादेव को व्हेन यू कॉल विद लव, you call with devotion, you bow down to him, you surrender him, that is where he starts destroying all the vices in you. हमारी सब बुराइयों का नाश करते हैं, इसके लिए वो महादेव है, वो भक्ति देखते हैं। On this note, I would like to end. I genuinely hope you liked the session. I hope you enjoyed the session. And thank you so much for your time and attention. I think you guys were really good, and so many conversations there in the chat box also. Thank you so much. Thank you so much for your time and energy. These are my connect. I'm available on most of the social media platform. There are a couple of videos as well. So if you want, we can please stay in touch, and and we can always, you can please share your learnings. I'm ready to, I am always eager and ready to learn from each one of you and from everyone, because learning cannot stop, and that's what life is all about. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for all the positive feedback, and thank you so much for your kind words in the chat box. I think that was a very good session, Rishi, what you conducted, and I am very sure ki there was a very mixed audience today. There were very much senior in age also, the participants.
So they definitely would be having better knowledge over all these aspects. But yet there was many young crowd also, and it would have been a very enlightening session for them also. And as truly said by you, there are a lot of things to be learned from Hinduism, and our each god, if you see, can give us a different kinds of learning, different kinds of motivation, different kind of lessons per se. So, and there are some surprises also for the audience as such. Me and Rishi just before the session were discussing. So we will not be disclosing what is the surprise, but in coming days you will be knowing about it. Rishi, just let me take this chance as you are there today. Can you just briefly describe about something about a beautiful book what you have written? I have read it. So can you just, for the benefit of the audience, explain what is your book all about? Thank you, sir. So, what happened ना sir, to be honest, मतलब भगवान का आशीर्वाद है. हम लोग मुझे आपने जैसे ये मान सम्मान दिया, कई लोग बुलाते हैं, बात करते हैं, और कई यंगस्टर्स, स्पेसिफिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, कई यंगस्टर्स ने मुझे हमेशा पूछते थे मेरे सेशन के बाद कि ऋषि, आपके पास कोई, आपने कोई बुक लिखी है या आप कोई बुक हमें रेफर कर सकते हैं जहाँ पे हमको सिर्फ कंटेम्प्रेरी वे में सीखने को मिले कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कि जो लर्निंग्स है. बिकॉज हमारे सेशंस में मैं प्रवचन अपनी जगह पे होता है, बट लर्निंग विद एंड कनेक्टिंग विद द ऑडियंस इज टोटली डिफरेंट एट टाइम्स. और हम लोग ने इसलिए क्या किया कि ये बुक लिखी. अब सर यूजुअली क्या होता है कि कोई आदमी पहले बुक लिखता है, फिर उसके ऊपर बातें करता है, टॉक्स करता है. मेरी वाइफ और मेरे केस में उल्टा हो गया, हमने 5 साल बातें की, फिर उसके ऊपर हमने बुक लिख दी. सो ये वो था कि जो दिस बुक इज स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू लीडरशिप टॉक, where we have discussed what are the styles of leadership, the organization phases, roles of a leader, when to help a subordinate, situational leadership, what is the professional chakravyuh as a businessman, as an entrepreneur, as a SME, or as a corporate that we are facing. When does Lakshmi starts following you? When do you become successful in life? How do you handle vices? ये सब हमने स्टोरीज के फॉर्मेट में इसको प्रस्तुत किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हमारी किताबें, हमारी बुक्स बहुत अच्छी है, फ्रॉम एजुकेटेड इंडिविजुअल टू एनलाइटमेंट, सब कुछ है. बट हमने उसको सिर्फ कंसाइज किया है, और हमने इसमें स्टोरीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, लर्निंग्स को शॉर्ट एंड कंसाइज क्रिस्प रखा है. एंड एक चीज का माय वाइफ एंड आई वाज वेरी केयरफुल इज, वी हैव जितना हमने पूरी बुक कम से कम 10-15 बार पढ़ी होगी, और हमने बहुत ध्यान से इंश्योर किया वी हैव नॉट बी लिटिल द गॉड, बिकॉज हमको एक, विदाउट टेकिंग नेम, किसी ने बोला था अगर तुमको एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है तो थोड़ा उल्टा सीधा लिख दो भगवान के लिए. मतलब जिसने हमें जन्म दिया उसके बारे में नहीं लिख सकता. कोई बुक पढ़े नहीं पढ़े चलेगा, बट वी विल नॉट force write anything against any DT and also we were very careful about it. So I think Rishi, thank you very much for sparing time out of your busy schedule. I know today also you had a back-to-back web talks there, and I think the best part about you is not only you have a good knowledge about the religion part of it, but also you have worked for I think 10 to 15 years in the corporate side. Also, Exactly. you have lots of educational degrees with you. So I think a very different take what you bring to the table, and I'm very sure the audience would have been inspired today with your talk. And many people are still logging in the Facebook currently. So I'll tell them that they can visit the Udan Saluters page, and again they can do a rerun of today's seminar web talk on the Lord Shiva and the lessons learned from there. Also in the what to say YouTube, the name of the page is Rishikesh Vyas, everything small. Whatever from the May onwards we have done the session on a different aspects, and that is the endeavor of Udan, what we try to do. We don't want to be repetitive on anything, but want to bring new things. Yesterday also we did a session on perfume. Today you are there. Last week it was on iTalk, it was there. And in the future also, in the coming days, there will be Supreme Court advocates and senior counsels who are coming. They will be covering on various aspects of the law. Also, on the cyber law, we are going to do something. New Consumer Act has come into place. On the legal side, we are going to do. And many more surprises are lined up for all the audiences. And I'm very sure you will keep on coming and blessing Udan Saluters. And whatever we are doing, it is non-commercial. It is for the benefit of all. And I
thank all the participants for sparing their valuable time and attending today's web talk. That gives us motivation, that gives us confidence. And last but not the least, the speaker for the day, Rishi, thank you very much. Thank you very much. May Mahadev bless you with everything in the life. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev, sir. Har Har Mahadev. Thank you so much, everyone, for the kind words and blessings. Thank you, Natarajan, sir, for the private blessings you've given me. So, thank you so much, sir. Means a lot to me. Thank you, sir. And thank you, Vyas, sir, again, one more time for the opportunity. Okay, thank you. Thank you, sir. Har Har.